A very good morning, students. How all are you? All are good at home? I hope you all are fine at home as winters are coming. So wear warm clothes and take care of your health. Eat healthy food. Stay safe and stay healthy. Let's start today's class. Children, what is the date today? कौन सी डेट है आज? Today is 11th November 2020. Today is 11th November 2020 and the day is Wednesday. Now children, we have already started chapter number 3. What we are reading? We are reading about parts of computer. So you can see here different kind of parts of computer. These are the main parts of computer. We have already read about input devices. हम लोग input devices के बारे में पढ़ चुके हैं. Keyboard and mouse are input devices. We input the data with the help of keyboard and mouse. हम कीबोर्ड और माउस की हेल्प से कंप्यूटर में कुछ डेटा एंटर करवाते हैं and we will see it on the monitor. Monitor is the output device. And what is this? This is the system unit. System unit is the processing device of the computer. System unit, that means CPU. It is the CPU box. Children, you all have seen this kind of device. आपने CPU box देखा हुआ है. We call it system unit also. हम इसे system unit भी कहते हैं. Inside the system unit, there is a CPU. This is the CPU, children, जो कि हमारे CPU box में होता है या फिर system unit के अंदर होता है. This CPU is inside the system unit. CPU is inside the system unit. CPU is the processing device. So today we will read about processing device and output devices. So children, bring out your computer books. So children, bring out your computer book and open page number 26. Open chapter number 3, parts of computer, and this is the topic processing device. The topic is processing device. We have already read till input devices. Now we will read about processing device. हम लोग input devices तक read कर चुके हैं. So let's read the topic processing device. The central processing unit, that is CPU, is called the processing device of a computer. कंप्यूटर में जो CPU होता है वह कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस होती है. It processes the instructions to generate results. प्रोसेसिंग डिवाइस, दैट मीन्स CPU की हेल्प से जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसकी हेल्प से हमें रिजल्ट मिलते हैं. It is placed inside the system unit. That means CPU. CPU is placed inside the system unit. आप लोगों ने देखा था कि CPU कहाँ पर होता है? System unit में. And what is the function of CPU? It is the processing device जो कि कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग्स को हैंडल करता है. It is something like जैसे आप मिक्सर जूसर देखते हैं. What happened in mixer? मिक्सी में क्या होता है? आपकी मदर कुछ इसमें अनियंस या फिर कोई फ्रूट्स डालती हैं अगर, और उसे जैसे मैंगो शेक बनाते हैं, मिल्क एंड मैंगो इसमें डालते हैं, एंड देन व्हाट हैपेंड, वी स्विच ऑन इट एंड
इट प्रोसेसेस, और उस पर प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है, सब कुछ आपस में मिक्स हो जाता है। सो प्रोसेसिंग किससे हुई, मिक्सर की मशीन से। सो इट इज समथिंग लाइक दिस कि सीपीयू भी, जो भी हम सीपीयू में इनपुट करवाते हैं उसके ऊपर सारी प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। कीबोर्ड एंड माउस की हेल्प से हम इसमें इनपुट करवाते हैं, एंड इन द सेम मैनर मिक्सर के जार में मैंगो, शुगर और मिल्क डाला जाता है। दिस इज द इनपुट फॉर द मिक्सर। मिक्सर के लिए ये चीजें इनपुट होंगी, और जिससे मिक्सर वर्क करता है, प्रोसेसिंग करता है, इन द सेम मैनर सीपीयू वर्क्स ऑन द कंप्यूटर। दैट मीन्स सभी मशीन्स में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। मोस्टली मशीन्स में, बहुत सारी मशीन्स में कोई ना कोई प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। लेट्स रीड द टॉपिक। द सिस्टम यूनिट also holds some other internal parts. You have seen the system unit, children? This is the system unit. System unit में बहुत सारे internal parts होते हैं. Just see here, internal parts of system unit. System unit के internal parts कौन से हैं? Motherboard, power supply, memory chip, that is RAM, hard disk, DVD drive. All these things are attached inside the system unit, such as motherboard, power supply, memory chip, hard disk and DVD drive. Motherboard is also called the main board, and there are so many components are fixed on the motherboard. Motherboard पर बहुत सारे main components attached होते हैं. It is the power supply, जिससे कंप्यूटर को पावर की इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. दिस इज मेमोरी चिप, दैट इज रैम. जो भी आप लोग कंप्यूटर में वर्क करते हो वो सबसे पहले आपकी रैम में सेव होता है. एंड देन इट इज द हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क मीन्स जब आप अपनी फाइल अपने नेम से या किसी भी नेम से सेव करते हैं फाइनली, सो द फाइल्स विल गेट परमानेंटली सेव्ड. फाइल परमानेंटली हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है. एंड दिस इज द डीवीडी ड्राइव. डीवीडी ड्राइव में क्या होता है, वी कैन यूज सीडीज और डीवीडीज. हम सीडीज एंड डीवीडीज डीवीडी ड्राइव में यूज करते हैं. लेट अस रीड अबाउट दीज डिवाइसेस. फर्स्टली CPU. It is known as the brain of the computer. All of you know that CPU is known as the brain of the computer. CPU is known as the brain of the computer. It processes instructions and controls all other parts of the computer. It processes instructions. जो भी instruction हम लोग इनपुट करवाते हैं उन्हें CPU प्रोसेस करता है. CPU उन पर वर्क करता है और कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है. जस्ट लाइक हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है ब्रेन से कंट्रोल होती है, हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती है, कंप्यूटर के भी पार्ट्स CPU से कंट्रोल में होते हैं. सेकेंड इज मदरबोर्ड. इट इज द main board on which all other parts are fixed or connected. Motherboard is the main board जिस पर कंप्यूटर के और भी पार्ट्स और भी थिंग्स कनेक्ट की जाती हैं. पावर सप्लाई. इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू द कंप्यूटर. पावर सप्लाई डिवाइस कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है. मेमोरी चिप, दैट इज रैम. The RAM is used to store information temporarily. Whatever work we perform,
जो भी वर्क हम कर रहे होते हैं वो उस टाइम रैम में जा रही होती है। टेम्परेरीली जब तक हम वर्क करते हैं वह वर्क रैम में स्टोर होता रहता है, और जैसे ही हम कंप्यूटर शट डाउन करते हैं रैम में से सारा वर्क इरेज हो जाता है। हार्ड डिस्क, द हार्ड डिस्क स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सारा वर्क स्टोर रहता है। दैट मीन्स जो वर्क हमने कंप्यूटर पे किया, लेट्स से वी हैव मेड अ हट, हमने हट ड्रॉ करी, व्हाट हैपन, हट जो है उस टाइम हमारे रैम में होती है, कंप्यूटर की रैम में होती है। इफ वी स्विच ऑफ तो हट जो है इरेज हो जाएगी। बट इफ वी सेव द हट, अगर हम सेव ऑप्शन की हेल्प से, MS पेंट के सेव ऑप्शन की हेल्प से हट को सेव कर देते हैं, फाइल बना देते हैं, हट की एक फाइल बना देते हैं, स्टोर कर देते हैं, देन व्हाट हैपन, द हट विल सेव्ड ऑन इनसाइड द हार्ड डिस्क, वह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। चिल्ड्रन, ऑल दीज थिंग्स आर द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज टॉपिक। जो भी हम रीड कर रहे हैं, CPU, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, मेमोरी चिप, हार्ड डिस्क, DVD ड्राइव, जो भी हम इसके बारे में रीड करें, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। वो सब इन पार्ट्स का इंट्रोडक्शन है, ये सब इसका इंट्रोडक्शन है। सो यू जस्ट लिसन अबाउट इट, वी विल मेक अ डिटेल्ड डिस्कशन इन आवर सीनियर क्लासेस। इनके बारे में डिटेल में सीनियर क्लासेस में पढ़ा जाएगा। सो जस्ट लेट्स हैव द इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट इज द DVD ड्राइव. The DVD drive is used to read from and write information on CD or DVD. Children, you have seen the CDs and DVDs. CDs और DVDs के साथ वर्क करने के लिए there is a drive called DVD drive, and DVD drive में हम CD और DVD को अटैच करते हैं, को पुट करते हैं, उसमें रखते हैं, एंड देन व्हाट हैपन, वी कैन रीड और राइट। रीड मीन्स हम CDs और DVDs को रन करके देख सकते हैं, जैसे मूवीज देखते हैं, एंड राइट करना मतलब उसके अंदर वर्क करना। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट, दीज थिंग्स आर इनसाइड द सिस्टम यूनिट, and it is a small introduction about it, that what are these things. Is it clear? CPU, motherboard, power supply, memory chip, hard disk and DVD drive. Next is output devices. Children, you have read something about output devices. Let's see again. The devices that are used to provide the result to the user are called output devices. The devices, जो devices यूज होती हैं किस लिए, रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए। यूजर कौन होते हैं? द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर। द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर। एंड जिन डिवाइसेस की हेल्प से हमें आउटपुट मिलता है, वी कॉल देम आउटपुट डिवाइसेस। एंड व्हाट इज द आउटपुट? वट एवर वी हैव ड्रॉन इन MS पेंट। MS पेंट में हमने जो भी कुछ ड्रॉ किया है, हार्ट ड्रॉ की है, देन हार्ट विल शो ऑन द मॉनिटर। फ्लावर ड्रॉ किया है, फ्लावर विल शो ऑन द मॉनिटर। एंड इफ वी टाइप अवर नेम, और अगर हमने कीबोर्ड से अपना नेम टाइप किया है तो हमारा नेम मॉनिटर पर शो हो जाएगा। ऑल दीज थिंग्स आर आउटपुट। और किस पर शो होगा? किस पर शो होगा? मॉनिटर पर। सो मॉनिटर विल बी द आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होगी। नाउ लेट अस सी द आउटपुट डिवाइसेस। हेडफोन। अ हेडफोन अलाउज यू टू लिसन टू म्यूजिक। A headphone allows you to listen to music or other audio files without disturbing anyone else. Headphones म्यूजिक सुनने के लिए यूज होते हैं। मॉनिटर्स,
Monitor is used to see the work whatever we have performed. जो भी हमने टास्क कंप्यूटर को दिया है उसका आउटपुट देखने के लिए हम मॉनिटर का यूज करते हैं. The monitor shows whatever you do on the computer. It is also called the visual display unit. मॉनिटर को हम क्या कहते हैं? मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं. विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दैट इज VDU. Is it clear to you? Next is speakers. Speakers are also used to listen music. And printer. Printer क्या करता है? Printer prints the output on paper. A printer prints the output on paper. You can take black and white or colored printout from a printer. आप प्रिंटर की हेल्प से ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर्ड प्रिंट आउट भी ले सकते हैं. ब्लैक एंड व्हाइट जिसमें इस तरह के कलर्स नजर नहीं आएंगे, और कलर्ड प्रिंट आउट जिससे आप इसमें कलर्स देख रहे हैं, पिंक कलर है, ब्लू कलर है, सो दिस इज अ कलर्ड प्रिंट आउट. और जब आपकी स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट वर्क ही नजर आता है, आपका पिंक कलर भी ब्लैक और ग्रेइश वे में हो जाता है, ब्लू कलर भी ग्रेइश हो जाता है, दैट मीन्स आप लोग केवल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ही देख पाते हैं. इट इज नोन एज black and white printout. Speakers allow you to listen to music and other audio files on the computer. Speakers आपको म्यूजिक सुनने के लिए और अदर ऑडियो मतलब अदर वॉइसेस सुनने के लिए हेल्प करता है. Headphones and speakers both are used to listen music, but with the help of speaker, so many people can listen together, and with the help of headphone only one person can listen. So children, it was the introduction of input devices, processing device, that means system unit, and output devices. So chapter number 3 was the introduction of these devices. Just read the chapter at home. Why the class is making so much noise today? Okay, they all are going to celebrate Diwali. So children, play a safe Diwali. Do not play with crackers. Decorate your home. Eat the sweets and enjoy your day. Happy Diwali, students.